Fine. So we go back to screen sharing, and we will start again with the first part of Orthodox School of Indian Philosophy, and that is Nishkama Karma, the first one that we were doing. Okay. So here we are. We had finished with this slide. Yes, we have done with dharma. We are done with how in Buddhism and in Jainism, the different aspects or ethical principles which are emphasized. We had seen that how these two characters are very interesting, intriguing, बहुत मजबूर करते हैं सोचने के लिए, फैसिनेटिंग है और धर्म दाव पे लगा है. इसके लिए ये दो जो मेजर कारण है, उसके लिए भगवत गीता बहुत इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बनता है. सिद्धांत है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग इज एक्टिविज्म, कर्म योग. कर्म मीन्स डिड, एक्शन, एंड योग इज अप्लाइंग oneself टू. आपको आपका कर्तव्य का पालन करना ही पड़ेगा. देयर इज नो चॉइस. Therefore, karma yoga is devotion to the discharge of social obligation. सामाजिक कर्तव्य जो आपका है वो तो आपको करना ही, समाज के प्रत्येक कर्म. आप एक मैन ऑन द आइलैंड नहीं है, जो लास्ट टाइम बताया था. यू आर in society, so you have certain things that you have to follow. There is no escape. So यहाँ पे example दिया है कि how these ants, they are so tiny, but still they are performing their duty, even though what brains they have. Here we have enough brains, but still we are not acting, so we must perform our action. The whole essence of Bhagavad Gita preaches karma yoga. It is the yoga of action. What is the crux, the core of the philosophy? Do good and be good. Do your job with complete dedication and don't expect anything in return. वही सब कुछ problem create करता है. Dedicate entire work to the supreme being. इसीलिए भगवत गीता की philosophy आस्तिकवाद की है, because whatever you are doing, but when you study the text, you realize who is God. God is purity. So ultimately, God is love. So you are dedicating to that entity who is only love, and love is universal. Love is everything. Love is bhakti, and therefore you find that you dedicate to that Lord who is pure entity. So the God. Now we came to this point, if I'm not wrong, this slide बहुत ही simple है, थोड़ा सा ध्यान देना है हमें. It's not at all difficult. The Bhagavad Gita is described, Bhagavad Gita, that is Bhagwan ka Geet. Okay, so it's a song, Lord song, ऐसे कहा जाता है. ट्रांसलेट अगर हम लोग करें वर्ड टू वर्ड तो इसका मतलब है लॉर्ड सॉन्ग. बट इट इज अ हाईली फिलोसॉफिकल मैसेज, बिकॉज उसे 108 जो उपनिषद हमारे पास है उसका एक फैसिनेटिंग ब्यौरा मिलता है अपनों को. You know, so you find that we have 108 Upanishads, 4 Vedas. तो ये जो उपनिषद है 108, इसका पूरा सारांश आपको, समरी आपको मिल जाता है भगवत गीता में. So though last time ये भी समझा था, part of Smriti, which can be fallible, which can be wrong here and there, but still Mahabharata epic is a fallible text because it is Smriti. It can be. But you find since Bhagavad Gita, though part of Mahabharata, is called as Shruti, cannot be wrong, that is infallible, because it gives you complete essence of 108 Upanishad. So kabhi-kabhi Gita Upanishad bhi कहते हैं. It contains a philosophical discourse, samvad hai, philosophical discourse, where Arjuna is reminded by Sri Krishna of his duties as a warrior. So it's very important that you must perform your duty. Yuddha mein, you know very well, both the parties, Kauravas and Pandavas. आप अगर सीरियल्स देखते होंगे वगैरह वगैरह, उससे अच्छा पीटर ब्रुक का महाभारत देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से बताया है. So there are two parties coming in front of each other. Now Arjun being the Senapati, is there someone? Yes. So Arjun Senapati है, तो आता है बीच में. Krishna says, I will not fight. I am only going to
direct you. I will ride your chariot. मैं तो सिर्फ रथ चालक हूँ, मैं और कुछ नहीं करूंगा. जब अर्जुन बीच में आता है रथ, और ये एक कथा है, एक स्टोरी है, ऐसा हम कहेंगे, ऐसे दो फाइट करने के लिए सेनाएं खड़ी है और बीच में ऐसा, और फिर कितने घंटे में, आधे घंटे में अगर समाप्त हुआ होगा, तो ये क्या दो सेनाएं ऐसी खड़ी रहेगी? ऐसा थोड़ी होता है. कथा हमेशा वैल्यू न्यूट्रल होती है. वैल्यू न्यूट्रल का मतलब कि सचमुच ऐसे हुआ था या नहीं, ये सही था या गलत, ऐसे नहीं कहा जा सकता है. कथा स्टोरी स्टोरी होती है ना. एक राक्षस था जिसने राजकुमारी को उठा के लेके गया, हम बचपन में सुनते थे. और फिर राजा बोलता है या प्रिंस बोलता है, उसके सर्च में जाता है कोई दूसरा प्रिंस राजकुमार और बोलता है कि मेरी प्रेयसी को मुझे छुड़ाना है. तो फिर उसे बताते हैं उसके गुरु के, वो जो पैरट है वो वहां पे उसके जो पैलेस में राक्षस के, उसके अगर मुंडी मरोड़ दी तो फिर वो उसकी जान चली जाएगी, नहीं तो वो मरेगा नहीं. और वो किस तरह से पैरट ना. आप ये कहते हैं कि ऐसा सचमुच होता है क्या? जब बचपन में भी आप सुनते हैं तो आप ऐसा बोलते हैं क्या सचमुच ऐसा होता है? बड़े होके भी आप बोलते हैं ऐसा होता है क्या? यू डोंट आस्क दैट. इट इज अ स्टोरी, एंड इन स्टोरी यू हैव द लिबर्टी टू ये छलांग मारने की. सो हमको, हमें इंटरेस्ट है उसका मैसेज, उसका फिलॉसफी. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सचमुच ये हुआ था या नहीं. अगर हुआ था तो ऐसे किस तरह से, हमारे पास कोई भी आर्टिफैक्ट्स नहीं है प्रूव करने के लिए. अगर नहीं हुआ था तो ये इतनी प्रचलित कैसे है, वगैरह वगैरह. दिस इज नॉट आवर कंसर्न. वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन फिलॉसफी ऑफ इट. और फिलॉसफी हम इतने न्यूट्रली करेंगे, नॉट एज अ हिंदू और अ मुस्लिम और अ क्रिश्चियन और अ सिख और पारसी और एनीथिंग. आई एम डूइंग, वी आर डूइंग ए स्टूडेंट ऑफ फिलॉसफी. फिलॉसफी क्या है उसके पीछे, और क्यों, व्हाई डू वी स्टडी भगवत गीता? बिकॉज इट इज वन ऑफ द पोटेंट टेक्स्ट वेयर इन ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी. हेट्रोडॉक्स भी करेंगे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक. चारवाक तो एकदम एक्सट्रीम मटीरियलिस्ट है. वो तो कहेंगे गॉड नहीं है, सोल नहीं है, कुछ भी रीबर्थ ऐसा कुछ भी नहीं होता, यही लाइफ है, इसमें ही आप कर लो जो कुछ करना है, उसके बाद कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, आत्मा वात्मा कुछ नहीं है according to them. So they also are Indian philosophers. So यहाँ पे हमें इंटरेस्ट है फिलोसफी ऑफ भगवत गीता में. नाउ दोनों पार्टीज खड़ी हैं, बीच में आते हैं, रथ लेके चालू करना है, शंख बजते हैं अपने अपने. और जब आते हैं और अर्जुन अपना गांडीव धनुष उठाता है और वो ऐसे ऐसे, ओ my relatives, my brothers, my cousins, my guru bandhu, and my grandparents, grandfather, and great grandfather, and this and that, and oh no. And then innocent जनता, जो वॉरियर्स है सामने, जो सोल्जर्स है सामने, वो इनोसेंट लोग है. वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं अपने लोगों को क्या, मैं किसी को भी नहीं मार सकता, बिकॉज ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग. अर्जुन इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. नो नो, आई कांट किल. और मुझे तीनों जहान मिल जाए, मुझे आप फेम, पैसा, प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, ये सब मिल जाए, मुझे नहीं चाहिए. जाने दो, वो भी जाने दो, लेकिन मुझे तीनों जहान नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा. दैट इज स्वर्ग, बीच का दुनिया और अर्थ. ये तीनों जहान भी मिल जाए तो भी मुझे नहीं चाहिए. तो मुझे फाइट नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए. मैं फाइट, ब्लडशेड नहीं चाहता. और फिर वो एकदम ऑलमोस्ट फेंट अवस्था में, मूर्छित अवस्था में, he becomes very despondent. Despondent का मतलब है highly confused. He is wavering. उसका माइंड एकदम ही डोल रहा है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, और वो ऑलमोस्ट फेंट होता है और ऐसे ही गिर जाता है अपने रथ में. Completely he is shattered. And then he is asking Krishna, please tell me, what should I do? And then Krishna says, when you are asking me, I'll tell you that you must fight. He said, you are telling me to kill? He said, I'm not telling you to kill. I am telling you that you are a warrior at present and one must perform one's duty. So if I'm a soldier on the front and when the war is going on, I come in front of the other party, because I don't believe in enemies. There are no enemies.
But if you come in front of other party and you are sitting there with the gun, with a machine gun, and then you say, oh, no, I can't fight. You can't do that. How will you protect your nation? How will you do that? I don't believe in war, basically. I don't believe in this aspect because I believe I'm a global citizen. So mere pare ki baat hai war. Now, अगर वॉर ही नहीं, वो वॉरियर है और उसे मारने को कह रहे हैं, तो हम कहेंगे हाउ कैन कृष्णा से दिस एज अ गॉड टू किल or to fight? He's not telling to fight. He's telling only to perform duty. Everybody has a designated duty. So my duty as a teacher, so-called, is to teach. Okay? Your duty as a student is supposed to learn. Is supposed to gain knowledge. Your duty is not first class first. Your duty is not that. It is something that follows afterwards. Your duty only is to gain knowledge. And once there is knowledge, let me examine. Therefore, we appear for exam. And on the basis of that, you will be gaining. So the duties of each and every designation that we have to perform. So when I am at home and as a daughter, my duties are there. As a teacher, my duty. As a wife, as a mother. So everywhere, wherever, in whatever circumstance and time and space I am, I have to perform my duty. And at present, you are a warrior. And therefore, you have to fight. I am not saying to kill. I am saying when you become violent, when a person becomes violent, when who is a Rakshas, by the way? I told you this. एक demon कौन होता है? Who is a demon? Who is a Rakshas? वो राक्षस उसे कहते, शैतान कौन है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फिलॉसफी पढ़े, हम टीवाई में पढ़ते हैं. इकबाल कहते हैं शैतान इब्लिस अल शैतान, वो है नहीं. वो क्या है? अच्छे ह्यूमन बीइंग का ऑपोजिट वो शैतान होता है. So just a second, just a very important call. It was a very important call. I had to attend. There was no escape. It was from college. So now, as I was telling you, that you have to perform. So now, who is a Rakshas? Who is a demon? राक्षस वो होता है जो अधीन होता है अपने पैशंस, डिजायर्स, लोअर बेस डिजायर्स, उसके अधीन, अपनी पंच इंद्रियों के अधीन हो जाता है. इज वेरी मच सरेंडरिंग टू वंस 5 सेंस ऑर्गन्स. प्लेजर्स, सेंसुअल प्लेजर्स. और प्लेजर हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है, बट किस तरह से हासिल करते हैं वो बुरा और अच्छा होता है. सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. सो राक्षस इज दैट पर्सन. सो इकबाल सेज हु इज इब्लिस? ये शैतान कौन है? ये सेटन कौन है? डेविल कौन है? डेविल है अच्छे इंसान का ऑपोजिट कौन है? आइडियल पर्सन, आदर्श व्यक्ति का ऑपोजिट शैतान होता है. इसके लिए मैं अपने आप को जब एनालाइज करती हूँ तो मैं कहूंगी मैं कितनी शैतान हूँ, मैं कितनी शैतान जैसे बिहेव करती हूँ, क्योंकि मैं कितनी आदीन हूँ. पेट भरा हुआ है तो भी खाना है और खाना है, और ये फिर कल नहीं मिलेगा. शादी में गए और इतना सारा है, इटालियन है, रशियन है, आजकल तो क्या क्या होता है शादी में. माय गॉड, यू आर बैफल्ड. साउथ इंडियन है, आई एम गुजराती, सो काठियावाड़ी है, दिस एंड दैट एंड this food, Jain food hai, and you have Russian salad, and you have what not, Italian, and then you feel
सब में से थोड़ा तो, फिर पानी पूरी भी है और वो कैसे छोड़े, तो सब खाने के बाद 2-3 तो बनती है यार। एंड फिर आइसक्रीम्स में वैरायटी है, उसमें फिर गोला भी है, आइसक्रूट वो भी है, और फिर आइसक्रीम भी है, और फिर ये, और फिर मुखवास जो होते हैं बड़ी शेप, तो उसकी वैरायटी होती है, सुपारी की बड़ी, तो जरा जरा तो चखे। एंड देन व्हाट हैपेंस, सो यू फॉल प्रे, सो आई फॉल प्रे, मैं एक शिकार बन जाती हूँ अपने पैशंस की, अपने डिजायर्स की। और दिस इज व्हाट कृष्ण सेज इज रॉन्ग। सो आपका अभी पैशन क्या हो गया, आपकी अभी इच्छा क्या होगी, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मार सकता, ऐसे कैसे चलेगा, यू आर अ वॉरियर। So you are not falling prey to your emotions. Emotions नहीं होता है, आपको rationally emotion से लिया हुआ decision, वो बहुत डाइसी होता है। Of course, जब हम मिस्टिसिज्म करते हैं टीवाई में डिटेल में, और नेक्स्ट ईयर भी आपको होगा, इंडो इस्लामिक सूफीज्म, सूफी मूवमेंट एंड भक्ति मूवमेंट, इमोशंस को बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन इमोशन इज नॉट विदाउट नॉलेज, it is backed by knowledge, and therefore they spread the message of love. So he's a very good human being, and the message of Bhagavad Gita is not given to everybody. It is privately given by Krishna to Arjun. We come to know because of Sanjay, who is giving live telecast to Dhritarashtra, who is blind. And Sanjay is given divine chakshu, and he's watching, he's like CCTV camera, and he's watching and he's telling that what is happening, and now he's एकदम मूर्छित अवस्था में है अर्जुन। एंड देन कृष्ण को पूछते हैं मैं क्या करूं, और कृष्ण कहते हैं अच्छा तुम पूछ रहे हो तो मैं बताऊंगा कि तुम्हें लड़ाई करनी चाहिए, बिकॉज वो तुम्हारा कर्तव्य है एज अ वॉरियर। सो आप वायलेंट कब बनेंगे, आप हिंसक कब कहलाए जाएंगे, या मैं हिंसक कब होंगी, जब मैं जीत हासिल करके बहुत खुशी मनाती हूँ कि मैंने उसको हराया, then I am violent. But when I am in a game, in a competition, और मैं जीत जाती हूँ और खुशी है, अगर हार गई तो भी it's all right, but I perform my duty. This is important. So when you are balanced mind, you are not happy that अरे you have killed people and I have won. उसमें एक जॉय नहीं है, जॉय सिर्फ इतने में है कि जॉय भी नहीं है, इसमें सिर्फ मैंने अपनी ड्यूटी का पालन किया है। Is it possible psychologically? That we will see next in the next slide, but at present this is what it is said. So it is a Lord's song. It contains a philosophical discourse where Arjun is reminded by Sri Krishna of his duties as a warrior. एक योद्धा हो, और योद्धा का धर्म है कि जब रणभूमि में है तुम्हें फाइट करना चाहिए। अरे वाह, क्या वर्ड्स मिल रहे हैं मुझे आज। You are a warrior and you are in the battlefield. Then what is the job of a warrior? What is the duty of a warrior? He is supposed to fight. You are not killing, you are just performing your duty. There is a fine synthesis, very important line. There is a fine synthesis coming together, bringing together, reconciliation. सब एक साथ आते हैं, वो है एक्शन, कर्म, डिवोशन, भक्ति, and knowledge. So nothing is without knowledge. Knowledge is must. Knowledge keeps your mind sane, rational. जो हम शानपना कहते हैं, शानपना यानी शानागिरी नहीं, शानपना means knowledge. That is balanced mind. एक व्यक्ति को अभी मेरे बेटे ने भी अपने कॉलेज से फिलोसफी टीवाई किया। ओके, नाउ मैं दूसरों के पेपर करेक्शन कर रही हूँ और उसका पेपर आया। ऑफ कोर्स वी आर नॉट सपोज टू करेक्ट एज मदर, रिलेटिव, जितने भी रिलेटिव्स होंगे उसके पेपर मैं करेक्ट नहीं कर सकती, एसेस नहीं कर सकती, तो मैं रीना मैडम को बोलती हूँ उनको करना है, और फिर बाहर के एक्सपर्ट्स आते हैं वो करते हैं। तो पर सपोज आई गेट द पेपर ऑफ माई सन, और किसी को मैं 1 मार्क के लिए फेल करती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, डिजर्व नहीं करता वो 1 मार्क। एंड व्हेन माय सन्स पेपर कम, भले वो ½ मार्क के लिए भी फेल होता या 1 मार्क के लिए, अभी यहाँ पे like Arjun, it will be a problem.
1 मार्क तो यहाँ वहां दे सकते हैं ना, आधा आधा यहाँ वहां दे सकते हैं। तो ये आपने पहले ड्यूटी किया, अभी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज माई इमोशंस आर स्टर्ड, माई सन, अरे भविष्य खराब हो जाएगा, अरे ये हो जाए, तो यू डिडंट थिंक ऑफ अदर चिल्ड्रन लाइक दिस. So what am I supposed to do at that time? As a teacher, I have to be rational and give whatever they deserve. I cannot be emotional in this matter. Emotions come when you love someone, they are your emotions. But problem comes when you expect that the other person also should love and reciprocate with the same intensity the way you are loving. Yahan pe problem hai. That is what Krishna says. You have to perform your duty without expecting fruits. So he says, action hota hai, devotion, sab kuch sharan kar do, मेरे शरण कर दो. कौन है कृष्ण? द प्योरिटी, गुडनेस. वो भक्ति से शरण करो और सरेंडर कर दो. एंड नॉलेज, और बैकिंग है नॉलेज का, रैशनैलिटी का. सो इट इज कॉल्ड एज कर्म, भक्ति एंड ज्ञान. दे आर 3 टुगेदर. दिस सिंथेसिस, ये जो तीनों मिलते हैं वही है योग. योग इज यूनियन ऑफ हायर एंड लोअर सेल्फ, आत्मा का परमात्मा से, या मेरे में लोअर आत्मा है, लोअरपन है, उसका अपर लेवल से एक हो जाना. एंड देन आई बिकम स्थित प्रज्ञ. स्थित प्रज्ञ इज बैलेंस्ड, अनडिविएटेड, डिविएट नहीं होता, बैलेंस्ड. तो स्थित प्रज्ञ इज अ बैलेंस्ड पर्सन हु थिंक्स इन अ बैलेंस्ड वे. नाउ प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? जब बहुत खुशी का मौका होता है, इतने खुश हो जाते हैं कि हार्ट अटैक आ जाता है. बहुत दुख का बात पता चला, इतना दुख होता है कि हार्ट अटैक. नाउ दोनों सूरतों में गलत है ना. यू हैव टू बी बैलेंस्ड. डिफिकल्ट सिचुएशन है, यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग. व्हेन इट इज खुशी का मौका है, डोंट गेट सो इलेटेड, बिकॉज भगवत गीता सेज दिस विल पास. आज है, कल नहीं होगा. सो दिस इज गोइंग टू पास. बेस्ट टीचर अवार्ड, खुशी, ओके फाइन, एंड देन इट विल गो. So now what? Now best teacher मिल गया तो मैं बंद कर दिया? No. Yeah, anybody gets an award. It's not something. You feel good. Yeah, your work is recognized. But after that, what? You have to still continue working. You should be balanced. And each one is a good teacher in their own ways. But only that I was selected. Okay, ठीक है. उम्र भी बढ़ गई है तो उन्होंने सिलेक्ट कर लिया. ठीक है ना. वैसे मैं नहीं मानती मेरी उम्र बड़ी है, मैं आपकी एज की, आपसे भी थोड़ी छोटी हूँ. सो इट कंटेन्स अ फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स वेयर अर्जुन इज रिमाइंडेड बाय श्री कृष्ण of his duties as a warrior. There is a fine synthesis of action, devotion and knowledge, karma, bhakti and jnana. This synthesis is yoga. So many people, great personalities have approved of it. Great people like Mahatma Gandhi, Annie Besant, Lokmanya Tilak, Henry David Thoreau, the great thinker, etc., have supported and accepted the philosophy of the Gita. In Karma Yoga, action is an end in itself. आपको अपने काम, आपका काम करना है, बस नतीजे की इच्छा नहीं है. एंड इन इटसेल्फ यानी काम ही एंड है. आएगा कुछ रिजल्ट, उसकी अपेक्षा नहीं है. डूइंग समथिंग फॉर कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट के लिए काम करना, इज डिवोशन टू फल. वो तो आप काम कर रहे हैं क्योंकि आपको फ्रूट की इच्छा है, फल की इच्छा है, रिजल्ट की इच्छा है. ऐसा रिजल्ट होना चाहिए. और जहां इच्छा आई वहां दुख हमेशा आता है. अगर इच्छा पूरी भी हुई तो नेक्स्ट इच्छा जन्म लेती है, और हर बार इच्छा पूरी नहीं होती. और जब नेक्स्ट इच्छा जन्म होती है, वो डर, ये पूरी होगी कि नहीं, ये पूरी होगी कि नहीं. और जब आप इसमें रहते हैं तो दुख होता है. अगर नहीं पूरी हुई तो दुख होता है, और दुख में से गुस्सा आता है, कृष्ण से. और गुस्सा में से इरैशनैलिटी, दिमाग खो जाता है. हम रैशनली डिसीजन नहीं लेंगे. आप कॉलेज इंशाल्लाह जल्दी चालू हो जाए. आप कॉलेज जाते हैं और रास्ते में जाते जाते दरवाजा पैर में लग जाता है,
वो मैटर है, उसको मालूम नहीं है। आप दरवाजे को और जोर से लात मारते, तेरी तो इतना लगा ना मुझे। दिस इज इरैशनल बिहेवियर। यू आर गेटिंग लेट, यू आर हड़बड़ी में काम कर रहे हैं, इन कंप्लीटली wavering mind, and you just stumbled upon the door and you got hurt. Now you give back to the door. Door is material, lifeless, inanimate. It has no feeling. So how can you say that? Why do you do this? This is something which is irrational. So Krishna says that when you have desire, it will follow misery, dukh. And from dukh, there will be anger. And anger means ki wajah se lack of rationality, thinking. And out of lack of rationality, mera patan ho jata hai. I'm gone. So don't do that. So don't expect fruit of your action. You just perform because it is your duty to do so. But Lord Krishna tells Arjun, for concern is only with action, never with its fruits. याद रखना, तुम्हारा सिर्फ कर्तव्य है कि तुम्हें अपना काम करना है, उसका नतीजा क्या होगा उसके साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है. One should not run away from one's duty. So you have to perform your duty. Not performing action is called as nishkarmaya. Action perform ही नहीं करना क्योंकि डर लगता है रिजल्ट क्या होगा, तो एक्शन ही नहीं करने का. अगर गलत हुआ तो जाने दे नहीं. सो नहीं करने का वो तो एस्केपिज्म है, भगोड़ापन. Coward. I'm a coward. I'm not facing that. And don't be a coward. I want to be a warrior. I want to be a shaurya. Shaurya दिखाना है मुझे, valor दिखाना है. So not performing action is called as naishkarmaya, no karma performance. That is naishkarmaya. But one must perform. So this is bad. One must perform action without expecting fruits is called nishkama karma. So performing your duty, not having any kind of result or consequences mind is called as nishkama karma. Nish nahi, kama fruit nahi chahiye, but perform karma. That is nishkama karma. One should realize that one is a karta, doer hai. आप करता है and not भोगता, enjoyer नहीं है. आपको करना है, भुगतने का काम नहीं है आपका. Therefore giving up attachment, लगाव, desire, इच्छा, fruit, नतीजा और interest, उसमें आपका कोई मकसद था, should be the main goal. That means all this should not be there. Giving up attachment, ना तो लगाव है, ना इच्छा है, ना फ्रूट दिमाग में है, ना इंटरेस्ट है. That has to be your goal. ये कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ कर रहे हैं आपका काम. Desires binds man. इंसान को बंधन में डालता है. Human being को, man is a wrong word here, human being को बंधन में डालता है, इच्छाएं. Therefore action must be performed in a disinterested manner. That means बिना फल के इच्छा रखे. डिसइंटरेस्टेड का मतलब उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा नहीं. आप कर रहे हैं बट फल की इच्छा रखे बगैर. नॉट रिनंसिएशन ऑफ एक्शन, नॉट गिविंग अप ऑफ एक्शन, नॉट टू परफॉर्म एक्शन, ऐसा नहीं, बट रिनंसिएशन इन एक्शन. इन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. Renunciation in action is important. So it is not giving up the action. It is performing action, but not expecting fruit. Renunciation का मतलब है त्याग, संन्यास, त्याग. So आप एक्शन का त्याग नहीं कर रहे हैं, आप एक्शन करते करते फल की इच्छा का त्याग कर रहे हैं. So this is what they say, not renunciation in action, but renunciation of action, but renunciation in action. त्याग रखना है फ्रूट का, काम करते करते एक्शन का ही त्याग करना है, ये गलत है. Which is renunciation in action, therefore is important. So action is better than inaction.
Always not performing action is bad. You must perform action. Perform your obligatory. This is what you also find in Quran. You have to perform your action. How can you run away from action? Therefore, Quran will not emphasize on asceticism, sannyas. नहीं, आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है. When we do Bhagavad Gita text, we compare it with the text Quran, and we find surah and some of the shloks are word to word similar, and this is the uniqueness. This is the beauty, and we are unnecessary, grumbling about so many things that no, we are right, oh they are right, or he is right, or she is right. No, it's same message. It is ethics, and ethics bola to that is something which you have to accept. So perform your obligatory duty. आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है, because action is indeed better than inaction. One gradually attains tranquility, param shanti of mind by keeping the mind fully absorbed in the self. आप आत्मा में fully concentrate कर रहे हैं by the means of a well trained intellect. Intellect से govern हो रहे हैं, बुद्धि से, and thinking of nothing else. And आप दूसरा कुछ भी नहीं सोच रहे हैं कि क्या होगा, क्या होगा. Now इसमें बहुत प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं ये कंसेप्ट में. नतीजा बिल्कुल ही ध्यान में नहीं रखा तो एक्शन परफॉर्म किया, उसका अगर बुरा नतीजा हुआ तो क्या होगा. So there are certain critical questions which arise from this, but the message is simple that you आपकी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए. And if you perform your duty without expecting fruit, with a balanced mind, with complete knowledge, with complete surrendering to Lord, then you are gunatita. That means जो passions, desires, या मैं कर रहा हूं, अहंकार, ये सबसे ऊपर उठ जाते हैं. So next one, okay? Yeah, this is interesting. This truth is known only to the true ज्ञानी. जो परम ज्ञानी है, knowledge है जिसको, उसको ही ये समझ में आता है. Who can perform निष्काम कर्म. So ये नहीं है कि मैं बहुत सिंपल पर्सन हूँ, मैं बहुत ही मुझे समझ में नहीं आता है कुछ, मैं सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन. नहीं, आप कर्तव्य का पालन बकायदा नॉलेज से करते हैं कि यही सही मार्ग है, यही एथिकल मार्ग है. That is what Bhagavad Gita says. But one may argue that for a person who has realized the self, nothing remains to be done. लेकिन ये क्वेश्चन खड़ा होता है ना, जिसने अपने आत्मा को या तो अपने आप को पहचान लिया है, फिर उसके लिए कुछ भी नहीं रहता ना, बिकॉज वो ऑलरेडी लिबरेशन के स्टेट में है, वो ऑलरेडी साल्वेशन या मुक्ति या मोक्ष या निर्वाण के स्टेट में है. तो उसको अभी क्या करने की जरूरत है, क्यों एक्शन परफॉर्म करने की जरूरत है, जब उसको परम ज्ञान मिल गया है, वो केवल ज्ञानी है, उसको परम सत्य मिल गया है, तो उसको अभी क्या करने की जरूरत है. ये गलत है. कृष्ण कहते ज्ञान मिल गया है, सब कुछ बराबर है, आपने अपने आप को जान लिया कि ड्यूटी से भाग नहीं सकते. To this the reply is the perfect man simply acts for good of humanity. अभी आपने ज्ञान हासिल कर लिया है, अभी आपका कर्तव्य है कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी. हेलो, सो आपको काम करना है फॉर ह्यूमैनिटी. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोक संग्रह. आपने सब कुछ अपना सब काम कर लिया, ओके, अभी क्या, रिटायर्ड हूं मैं लाइफ, तो मैं लोक संग्रह करूंगी, लोगों की सेवा. और अदरवाइज भी आपने सब कुछ जान लिया है, तो अभी आपको लोगों के लिए की सेवा करनी चाहिए, पूरा नेचर की, कायनात की सेवा करनी चाहिए. दिस इज इंपॉर्टेंट. He who performs, now to this the reply is the perfect man simply acts for good of humanity. He who performs action in a disinterested manner, जो काम करता है फल की इच्छा रखे बगैर,
considering himself to be an instrument of God, जो मानता है कि मैं तो सिर्फ एक साधन हूं भगवान का, is not polluted by sin. उसको पाप दूषित नहीं करता. This is very important. Just as the lotus leaves, कमल के जो पत्ते होते हैं वो मखमली होते हैं, उसमें कौन सा भी कीचड़ का कण या तो फिर पानी भी ठहरता नहीं है, वो स्लिप हो जाता है, स्लिपरी होता है. तो even if being in swamps or muds or water, still it remains pure. In the same way, one who has realized the self is performing one's duty towards humanity as a whole, then it remains always, untouched by sin, unpolluted by sin. Like lotus leaves, though in a swampy waters, kichad mein, is not polluted by it. But again, it may be argued, लेकिन वापस एक क्वेश्चन आएगा, that it is psychologically, अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो कितना इम्पॉसिबल है कि मकसद ही नहीं है दिमाग में और काम करते जाना, ये कैसे पॉसिबल है? So psychologically it is impossible to have a complete disinterested action. कुछ मकसद ही नहीं है तो कैसे काम कैसे करें? To this the reply is, Krishna, he's a smart guy. He says a liberated sage, Rishi, is above the psychological plane, and therefore we talk of philosophical counseling. एक जो ऋषि या साधु, वो ऑलरेडी जो लिबरेटेड हो गया है, जो मुक्त हो चुका है ये दुनिया के बंधनों से, काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी है इसके लिए, उसको नॉर्मल साइकोलॉजी के लॉस नहीं लगते जैसे मुझे और आपको लगते हैं, बिकॉज हम लिबरेटेड नहीं है. मैं लिबरेटेड नहीं हूँ, आपका मुझे मालूम नहीं है. सो मैं लिबरेटेड नहीं हूँ तो मेरे को साइकोलॉजी के रूल्स लगेंगे कि अनइंटेंशनल एक्शन में कैसे परफॉर्म करूं. मुझे कोई ध्येय होगा, मकसद होगा तो ही मैं करूंगी ना, वो मेरे को लगता है. बट वन हु हैज अचीव्ड हाईएस्ट नॉलेज एंड हैज रियलाइज्ड द सेल्फ, लिबरेटेड सेज, उसको ये साइकोलॉजी के रूल्स नहीं लगते. एंड द गीता नेवर रिकमेंड्स कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ डिजायर. गीता कभी ये नहीं कहता है कि आप डिजायर, इच्छा, फल की इच्छा या इंटेंशन या मोटिव रखो ही मत, कंप्लीटली नहीं रखना, ऐसा गीता नहीं कहता. गीता नहीं कहती. इट नेवर सेज देयर शुड बी नो मोटिव, सॉरी, देयर शुड बी, दो बार आ गया आई थिंक. इट नेवर सेज देयर शुड बी नो मोटिव, शुड बी, oh no, it is not like that. Just let me correct it. Just a minute. Yeah, it never says there should be no motive. Just a minute. Instead, yeah, now it is all right. So, the Gita never recommends complete stoppage of desire. बिल्कुल डिजायर नहीं होना, ऐसा गीता रिकमेंड नहीं करता. जस्ट अ सेकेंड. या ओके. सो कंप्लीट मोटिव नहीं होना ये नहीं है. देयर शुड बी नो मोटिव एट ऑल. गीता से सभी एक्शन का एक ही मोटिव होना चाहिए और वो है आध्यात्मिक, दैट इज स्पिरिचुअल. सो इट नेवर सेज देयर शुड बी नो मोटिव. इंस्टेड द मोटिव शुड बी सेम फॉर ऑल एक्शन, नेमली स्पिरिचुअल डिजायर. वो सिर्फ आध्यात्मिक मोटिव होना चाहिए. डिजायर शुड बी ओनली स्पिरिचुअल, दैट मीन्स प्योरिटी, दैट इज प्योर एथिकल. सिर्फ वो डिजायर की आध्यात्मिकता, दैट मीन्स आई एम नॉन अटैच्ड, आई एम नॉट फाइंडिंग प्लेजर और पेन, बिकॉज एवरीथिंग दैट कम्स हैज टू गो. टुडे आई एम हैप्पी, टुमारो आई विल बी सैड. टुडे आई एम हेल्दी, टुमारो जब फटका लगा बॉडी पे तब रियलाइज हो,
I was feeling that now I can do everything. But then I realized, no, it is not possible. When I was bedridden, couldn't move and couldn't do anything, then I realized, oh, I was such and such. When I got these herpes, the herpes, the face completely changed. And then I was watching, but this will also go. Now again, something else will come, that will also go. So everything has to go. So you should neither be affected by a sorrowful situation, nor be affected by pleasant situation. You should be completely balanced. No one who does good work will ever come to a bad end. No one who does good work. कोई भी ऐसा इंसान जो अच्छा काम करता है, वो कभी भी उसका नतीजा बैड नहीं होगा. Either here or in the world to come. ये जीवन में या दूसरा जीवन जो आने वाला है उसमें. That is what Krishna says. So, bhakti is also a form of karma because it is disinterested service to God that also requires knowledge. Therefore, only true ज्ञानी, ज्ञान होना अनिवार्य है. सिर्फ आप भक्ति से करते हैं तो भक्ति is also a form of karma. When you are walking on the path of devotion, that is also a form of karma. That is service to God. And Nishkama karma says service to humanity is service to God. So, but उसके लिए भी ज्ञान चाहिए ना, knowledge चाहिए. Therefore, only a true jnani can perform Nishkama karma. The Gita says, the doer of good never comes to grief. Krishna says, जो अच्छा काम करता है वो कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसको दुख सुख से नहीं करता है, वो कर रहा है because उसका ड्यूटी है. So अगर नतीजा गलत आया या बहुत खराब हुआ तो बोला मैंने कोशिश की थी मेरी बेस्ट, बट सिचुएशन ऐसी हो गई. तो हो सकता है कि मैंने प्लांट किया था एज अ किसान, मैंने किया था फील्ड टिल किया था, लेकिन बारिश नहीं हुई तो इट डिडंट वर्क आउट. ऑफ कोर्स उसके रेपरकशंस है, तो उसमें से पाथ कैसे निकालना, तो गवर्नमेंट का भी जॉब है, तो उसको भी अपना कर्तव्य का पालन करना. अगर सभी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो कोई दुखी ही नहीं होगा. और दुख और सुख तो आते जाते हैं, नेचर की कैलामिटीज आते हैं, बट उसमें आप कैसे बैलेंस्ड रहते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया है ये इमेज में. सो द डूअर ऑफ गुड नेवर कम्स टू ग्रीफ. दस फॉर गीता, कर्म एंड भक्ति आर द ओनली मैनिफेस्टेशंस ऑफ ज्ञान. अगर आप भक्ति भी कर रहे हैं, डिवोशन, और आप कर्म एक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं, रिमेंबर ये एक साकार स्वरूप है, मैनिफेस्टेशन ऑफ ज्ञान. दिखाता है कि आपका ज्ञान कितना है. विदाउट ज्ञान, अगर ज्ञान ही नहीं है, लिबरेशन, मुक्ति, डिसइंटरेस्टेड एक्शन, निष्काम कर्म and bhakti, devotion are impossible. It is not possible. So Gita is a dialogue between Sri Krishna and Arjun, where the Lord preaches Arjun. One of the main concepts of the Gita is the concept of Sthita Prajna, completely balanced here, completely balanced mind. It is based on the doctrine of Nishkama Karma or detached action. A philosopher or Tattvajnani, as he is called in the Gita, is the same as Sthita Prajna, which we say, गीता में जो कहा गया है तत्वज्ञानी फिलोसोफर कौन है, तो वो स्थित प्रज्ञ है. He is also known as जीवन मुक्त. ये शरीर है, जीवन हम जी रहे हैं, लेकिन फिर भी लिबरेट हो गया है, फिर भी मुक्त है, और liberated while alive. The जीवन मुक्त is one who is liberated in his life. Though he is liberated, he is active in this life. भले वो मुक्त हो चुका है, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन तो करता ही है. So always at peace, not shaken by any disturbances in events or situations. वो है स्थित प्रज्ञ. Therefore, be a स्थित प्रज्ञ. Is that clear? So this we will do next time. And we stop here. I hope you have understood.